very good afternoon once again to all. We are going to start today's lecture, and today amidst us we have Dr. Zamuna Bini. Dr. Zamuna Bini is currently working as an assistant professor in the Department of Hindi, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. She is a bilingual writer. She writes in Hindi as well as in her mother tongue, Nisi. Her notable published works are Do Rang Purush, Mohan Rakesh or Girish Kannat, that's a work of criticism. Then Jab Adivasi Gata Hai, that's a poetry collection. Then Uimok, that's a Nisi folktale collection. Ayasit or Anya Kahania, that's a short story collection. Zamuna Bini, Sayanit Kabitae, that's a poetry collection. Her poems are included in the MA curriculum of Allahabad University, Mizoram University, Indira Gandhi National Tribal University, MP, Mumbai University, etc. Her short stories are taught in the MA course of Nagaland University, Sikkim University, NCERT curriculum of Government School of Rajasthan, etc. Her works has been translated into many Indian languages, including Assamese, English, Malayalam, Marathi, Santali, Telugu, Urdu, and in foreign languages as well, like Turkish, Bulgarian, etc. So she has received many recognitions across the country and abroad for her literary works. She has received awards like recently in 2024, Dr. Bini has been awarded the prestigious Yoba Katha Sanman for the collection of short stories titled Ayasit Atithi or Anya Kahania. She has also received Rashtrabhasha Gaurav Award by Akhil Bharatiya Hindi Sevi Sansthan. Then she has also received Saraswati Singh Award by Purvottar Hindi Academy. Then Young Poet Award by Arunachal Pradesh Literary Society, the Nari Shakti Puraskar by His Excellency Governor of Arunachal Pradesh, International Ambassador of Peace by World Literary Forum for Peace and Human Rights, Bhutan. So this is in short her biodata. Now I would like to request Dr. Zamuna Bini Madam to continue her lecture. Thank you. नमस्ते आप सबको। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम। मुझे एक सिग्नल, एक इशारा कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? यस। यस मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग जितने पार्टिसिपेंट्स बहुत असम के अलग अलग हिस्सों से और भारत के अलग अलग हिस्सों से आप लोग आज इस कार्यक्रम में, इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत ज्यादा इस्तकबाल करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ। और इंट्रोडक्शन में करेक्शन करना चाहूंगी, मैं यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट नहीं बल्कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मैं आई एम वर्किंग here as an not assistant, associate professor. मेरे इंट्रोडक्शन में एक स्लाइट वो मिस्टेक हो गया, मैं उसका करेक्शन कर रही हूँ। और इसके साथ ही हैंड्रिक कॉलेज के जो भी तमाम जो इंग्लिश डिपार्टमेंट और जो बाकी जो फैकल्टी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं सम्मान और मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ आज का जो टॉपिक है उसे लेके जो भी मैं मेरे अंदर जो भी जैसे अब तक जो मैंने ज्ञान अर्जित किया उसे के साथ मैं साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। और जिंतू जी के लिए बहुत बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि अब बड़ी क्या कहूं कि बहुत उनको स्पेशल थैंक्स
जिंतू जी ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे संपर्क किया और मुझे कहा कि मैडम हम लोग इस तरह एक सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है वो कैसे ओरल लिटरेचर में उसका किस तरह से उसका रिफ्लेक्शन हुआ है, कैसे उसका डिफिक्शन है, वो आप उसे लेकर हम चाहते हैं आप एक लेक्चर एक एक टॉक इस पर आप दे। तो ये विषय इतना रोचक है, ये टॉपिक मुझे इतना ज्यादा मुझे एक्साइटिंग लगा, मैंने तुरंत जिंतू जी को अपनी रजामंदी दी, अपनी मैंने हामी दी। तो जिंतू जी जैसे ये जो पूरा कार्यक्रम है वो इसके निमित्त आप बने और आपने मुझसे, जैसे मैंने कहा कि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, तो जिंतू जी आपको बहुत बहुत एक विशेष धन्यवाद। मैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश से आपके लिए मैं विशेष धन्यवाद मैं ज्ञापित कर रही हूँ। स्पेशल थैंक्स टू जिंतू जी। तो आज का जो विषय है कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कैसे ओरल लिटरेचर में आ, कैसे ओरल लिटरेचर में कैसे इंडिजिनस जो नॉलेज सिस्टम है उसका प्रतिबिंबन या उसका चित्रण या उसका अंकन कैसे हमें दिखलाई पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ओरल लिटरेचर पर मेरा बहुत एक विशेष मेरा लगाव रहा है और मैं उईमोक नाम से एक मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइबल कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ और मैंने साल 2019 में निशी फॉकटेल्स यानी उईमोक नाम से एक निशी फॉकटेल्स मैंने कलेक्शन बचपन में जो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मेरे चाचा के बहनों से और बाकी लोगों से जो मैंने कहानियां सुनी उनका मैंने कंपाइलेशन करके 2019 में उइमोक नाम से निशी पॉकटेल्स कलेक्शन मैंने इसका पब्लिकेशन करवाया और इसका पब्लिकेशन किया भोपाल। अंत में ये डिसाइड करते हैं, अंत में ये निर्णय लिया जाता है, ये फैसला करते हैं कि हमें इस गांव को हमें इस गांव को हमें इस गांव को अबंडन कर देना चाहिए, यानी कि त्याग कर देना चाहिए। तो अब जैसे देखिए घरों के शुद्धिकरण के लिए जैसे हमने सैनिटाइजेशन देखा, इसी तरह से जो पानी होता है पानी में अदरक मिला के अदरक का घोल लगा के जो पानी है उसको लेके घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो महामारी के जो विषाणु है जो कीटाणु है अगर वो उससे अगर जो अदरक का जो पानी है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित होता, तब गांव वाले ये कहते हैं कि तब तो हमें इस पूरे गांव को हमें परित्याग कर देना चाहिए, अबंडन कर देना चाहिए और वे दूसरे गांव या यानी कि दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं और वहां फिर ये नया गांव बसाते हैं। तो आप इस तरह देख सकते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से आ, हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी है उस ट्राइबल सोसाइटी में हम इस ओरल लिटरेचर के माध्यम से हमें ये पता लगता है, एक तरह से इस ओरल लिटरेचर के माध्यम से ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ या ये हमें दिखलाई पड़ता है कि कैसे जो सैनिटाइजेशन कैसे सैनिटाइजेशन की जो भावना है वो इतना ज्यादा प्रबल है लोगों में कि लोग अपने घरों को अपने गांव को उसे छोड़ देने के लिए भी लोग उसके छोड़ देने के लिए भी ये लोग बिल्कुल क्या है उत्साह से भरे हुए हैं। मतलब उनके लिए गांव से ज्यादा उनके लिए उस मिट्टी से ज्यादा जिसमें ये इनका लालन पालन हुआ जिसमें ये पले बड़े उस मिट्टी से ज्यादा उनके लिए वो शुद्धिकरण का या वो जैसे हमने कहा कि वो सैनिटाइजेशन का भाव इतना ज्यादा अधिक महत्व रखता है, इतना ज्यादा प्रबल है कि वो उसके लिए अपना सब कुछ से मेरा मतलब अपना घर द्वार सब कुछ त्याग के किसी बिल्कुल अनजान जगह एक बिल्कुल नया जीवन एक बिल्कुल अपना एक अतीत को त्याग के बिल्कुल एक नया जीवन एक नए सिरे से शुरू करने के लिए ये लोग दिखलाई पड़ते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो सैनिटाइजेशन का भाव शायद आपको किसी दूसरे जैसे मैंने कहा कि दूसरे आपको किसी आपको समाज में सोसाइटी में जिसको हम एडवांस कहते हैं या जिसको दूसरे बहुत तरह के हम नामों से पुकारते हैं, उन समाज में आपको दिखलाई पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारे जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में और खासकर जो उसके मैं ये सारी जो बातें कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल लोक कथा फोक टेल्स के रेफरेंस से फोक सॉन्ग के रेफरेंस से मैं कर रही हूँ। और इस जैसे मैंने कहा कि इस लोक कथा में हमें दिखलाई पड़ती है कि कैसे सैनिटाइजेशन का भाव इतना प्रबल है कि उसके लिए सब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ने को तैयार हमें दिखलाई पड़ता है। इसके बाद में और एक लोक कथा का मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। एक और लोक कथा है मितुर ला मिता। इसका हिंदी में अनुवाद होगा मितुर और मिता। तो इसका निशी में है मितुर ला मिता। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे अ, अ, फैक्ट्रियों में काम करना, अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह जाकर शहर में बस जाना और वहां के फैक्ट्रियों में काम करना, ये जो सब सारा जो ये जो एक काम करने की जो शैली जो विकसित हुई, अगर हम खोजेंगे इतिहास में तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले छोटे छोटे जो भी इंडस्ट्रीज हुआ करते थे वो बहुत लार्ज स्केल तो था नहीं। एक छोटे छोटे स्केल पर उसका हम कह सकते हैं कि उसका कार्यान्वयन हुआ करता था। लोग घरों में ही मतलब घरों से ही काम करते थे। लोग घरों में पोटर मेकिंग करेंगे, लोग घरों में अपना जो है वो पेपर मेकिंग करेंगे, इस तरह से करते हैं। तो ये जो पूरा कार्य करने की जो शैली है, जो पद्धति है, ये बिल्कुल उलट जाता है कब, या इसको बिल्कुल कौन चेंज करता है, परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन हमें कब दिखलाई पड़ता है? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगमन होता है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तब हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। जहां फैक्ट्रियां बसाई जा रही है, उन फैक्ट्रियों में जो मजदूरों की जो कॉलोनी है, जो कॉलोनी बसाई जा रही है, उन कॉलोनियों में लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। वहां से उनको जो भी तनख्वाह मिलता है वो अपने घरों में, गांव में भेज रहे हैं। तो उससे पहले तो जैसे मेरा कहना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तो सारे लोग अपने घरों घरों पे रह, मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वो अपने घरों में ही रह के काम करते थे। तो अब ये मिथुला मिथा इस लोक कथा में भी ये है कि एक गांव है, एक निशी गांव है। और उस निशी जैसे हमारे लोगों को जो हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, उनको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का अगर उनको डेफिशिएंसी रहा है तो वो है सॉल्ट का, नमक का। हमारे लोगों को नमक बहुत मुश्किल से मिलता था। और नमक बहुत जो हमारे एंसेस्टर है वो बताते हम जो उनके किस्से कहानियों में, एनेक्डोट्स में हमें पता चलता है कि किस तरह से नमक इतना बहुमूल्य एक प्रेशियस आइटम हुआ करता था, जिसे लेने के लिए, नमक को हासिल करने के लिए ये लोग तिब्बत जाते थे। बिल्कुल इस ओरल लिटरेचर के माध्यम से हिस्ट्री का भी हमें पता लगता है कि हमारे लोग आज बाउंड्रीज बन गए हैं। आज हम उस तरह से तिब्बत हम नहीं जा सकते। हमें हमें बॉर्डर में जो सेना है वो हमें पकड़ लेंगे। लेकिन हमारा ये सरहद खींचने से पहले, ये बॉर्डर्स बनने से पहले हमारे लोग बहुत काफी प्राचीन समय से तिब्बत के साथ हमारा एक बिजनेस, एक व्यापारिक संबंध रहा। उनके साथ हमारा बिल्कुल एक ट्रेड रिलेशन रहा। तो खैर मैं बताती हूँ कि इस कहानी में ये है कि ये गांव में नमक खत्म हो गया। अब गांव में नमक खत्म हो गया तो क्या करे? नमक लाने के लिए दो ही जगह है। एक जगह है जिसको निमोयोक कहते हैं, तिब्बत। तिब्बत के लिए निशी में टर्म है। हम निशी लोग तिब्बत को तिब्बत नहीं कहते। जैसे हमने कहा कि हमारी बहुत सारे लोक कथाओं में तिब्बत का बार बार उल्लेख आएगा। क्यों? क्योंकि तिब्बत से हमारा बहुत ही पुराना व्यापारिक हमारा ट्रेड रिलेशन रहा। आज खैर वो ट्रेड रिलेशन आज तो खत्म हो गया। तो खैर मैं बताना चाह रही हूँ, तो तिब्बत को हम लोग यमन कहते हैं, हम निशी लोग। तो अब ये है कि इस निशी गांव में नमक खत्म हो गया। अब क्या करें? तो या तो नमक दो ही जगह से हमें मिल सकती है। एक तो या तो निमयोक जाओ, मतलब तिब्बत जाओ,
और एक तो या फिर हमें निपक मोरे यानी कि मैदानी क्षेत्र जाना, प्लेन्स में जाना, प्लेन से हिल्स से उतर के, पहाड़ों से उतर के आप मैदानी क्षेत्र में जाना। तो जो मैदानी क्षेत्र से सीधा तात्पर्य है आज का असम, जिसे आज हम असम कहते हैं। अब जैसे ही आप जानते हैं कि अरुणाचल का जहाँ पहाड़ी हिस्सा खत्म हो जाता है, वहां असम शुरू हो जाता है। तो असम अरुणाचल का एक पड़ोसी राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि निपक मुरु यानी कि निपक मुरु का अर्थ मतलब प्लेन एरिया। तो आप या तो प्लेन एरिया में जा सकते हैं। तो अब ये है कि अब उस गांव वाले दो तरह से नमक हासिल करते थे। अब जब खूब बारिश होती है, बारिश के टाइम में जो मॉनसून सीजन होता है, तब वो निपक मुरे नहीं जाता, असम नहीं जाते, क्योंकि उनको पता होता है कि असम में, यानी कि उस समय तो असम नहीं था, उस समय लोग कथाओं में असम नाम नहीं है, निपक मुरे नाम है। तो उसमें क्योंकि प्लेन बारिश के टाइम में, मानसून के टाइम में वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां फ्लड होगा, फ्लड, वहां बाढ़ आई हुई होंगी, और वहां जाना रिस्की है बहुत, ये बहुत जोखिम का काम। तब ये नमक लेने के लिए कहाँ जाते थे? तब ये नमक लेने के लिए, रॉक सॉल्ट कलेक्ट करने के लिए, तब ये निमन्योक यानी कि तिब्बत चले जाते थे। और जब विंटर आता था, जब जाड़े का, जब सर्दी, जब विंटर जब आता है, तो विंटर सीजन में अब जाहिर सी बात है कि एक निमन्योक यानी कि तिब्बत जाने के रास्ते में इतने बर्फ होंगे, इतने बर्फ होंगे। और बर्फ के क्या है कि मतलब बड़े बड़े क्या है, बर्फ के मलबे होंगे, वहां आप जा नहीं सकते। तो विंटर सीजन में ये प्रेफर करते थे कहाँ जाना? निपक मोरे यानी कि वर्तमान समय का असम। ये जा कि हमें निपक मोरे जाना है अभी वहां। अब जाहिर सी बात है कि विंटर सीजन में कोई फ्लड का तो कोई रिस्क नहीं, तो फ्लड का कोई डर है नहीं, तो ये जाते थे वहां। जब फ्लड का रिस्क नहीं, तो ये यानी कि मॉनसून सीजन में नमक कलेक्ट करने के लिए निशी लोग जाते थे निमन्योक, तिब्बत। और विंटर सीजन में चूंकि वहां बर्फ बहुत ज्यादा रहता है, वहां जा नहीं सकते, तो इसीलिए विंटर सीजन में ये चले जाते थे कहाँ? ये निपक मुरे यानी असम चले जाते थे। तो इस लोक कथा में ये जिक्र है कि जब गांव गांव में जब नमक खत्म हो जाता है, तब हम नमक कहाँ से कलेक्ट करें? तो नमक कहाँ से कलेक्ट करें, इसके लिए एक एक टीम बनाई जाती है, एक दल का गठित किया जाता है कि ये दल जाएंगे और नमक लेके आएंगे। तो उसमें उस कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है तायो। तायो, तो वो तायो कहता है, वो दरअसल इसमें ये कहा जाता है कि हर एक परिवार से, ईच फैमिली से एक एक आदमी जाएगा नमक लेने के लिए। जब तायो का परिवार का उसकी जब बारी आती है, तो तायो कहता है कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं, तो मैं ही चला जाता हूँ। तो ये बहुत 7 डेज फुट मार्च करके ये असम उतरते हैं, निपाकमुरु उतरते हैं, और वहां से ये सारा जो नमक वगैरह है वो लेके, नमक वगैरह वो लेके आते हैं। तो इसमें असम और अरुणाचल का भी रिलेशन दिखाते हैं। कहानी में बहुत कुछ होता है। मैं केवल जो जिससे हमारा वास्ता है, मैं उसी 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 मैं यहाँ पूरी कहानी बताना, यहाँ मेरा मकसद नहीं कि मैं पूरी कहानी ही सुना दूं। मेरा बस मकसद यही है कि कहानी के उन अंश से, कहानी का वो हिस्सा जिससे हमारा मतलब बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा टॉपिक से कनेक्टेड है। तो इसमें ये कि जब तायो लौट के आता है और बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है, तो उसकी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत चिंता करते हैं। वो बहुत चिंता करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी से हम बाहर नहीं भेजेंगे। बाहर यानी कि अब जाहिर सी बात है कि सब लोग किसी नए जगह जाना, किसी अजनबी से मिलना, उसको लेके हमारे पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स होंगे, वो थोड़े से आशंकित तो होंगे ही कि पता नहीं कैसे क्या हो। तो इसीलिए जब तायो वहां जाता है, जाके लौट के आता है, उसकी भी एक अलग कहानी है कि वहां उसको एक ऐसा दोस्त मिल जाता है। वो दोस्त के नाम पे दरअसल दोस्त नहीं होता है, एक राक्षस होता है जो उसका खून चूस लेता है। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं उस कहानी की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, केवल उन्हीं हिस्सों को लूंगी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें ये कहते हैं कि उसके फैमिली वाले जोर देते हैं उसको, फैमिली वाले उसको बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसिस करते हैं कि अगली बार से तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं घर पे रह के काम करोगे, या तुम नमक बनाने का जो बनाने का जो ज्ञान है वो तुम अर्जित कर लो और तुम यहाँ सीख लो।
तो इसी तरह जैसे मैंने कहा, जो जो भी अगर हम फोक लिटरेचर हम यहाँ उठाए, तो फोक लिटरेचर जब उठाते हैं, चाहे वो विविंग की, जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो विविंग करते हैं, और फिर अगर हम पुरुषों की अगर हम बात करें तो वो आखेट यानी कि शिकार जाते हैं, हंटिंग जाते हैं। लेकिन हंटिंग जाना भी उस तरह से नहीं कि वो घर से एकदम दूर चले गए, विदेश चले गए, नहीं। तो चाहे वो खेती करे या चाहे वो कम्युनिटी हंटिंग करे, एक वो डिमार्केटेड एक प्लेस होता है, एक डिमार्केटेड एक बॉर्डर होता है, विद इन बॉर्डर में रह के ये सारे काम करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक परिवार से एक बच्चा, एक जवान बच्चा नीचे क्या उतर गया, नीचे उतरने के बाद जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, यानी कि जब वो लौट के आता है तो उसका तबीयत बिगड़ा हुआ है, और माँ पिताजी उसको सीधा ये कह के उसको माँ पिताजी मना करते हैं कि अगली दफा से तुम नहीं जाओगे, किसी नई जगह जाओगे, तुम्हें जो कुछ भी करना है घर से ही रह के तुम करोगे। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई किसी पश्चिमी नॉलेज सिस्टम की देन नहीं, बल्कि ये हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में पहले से ही मौजूद रहा है। इसलिए देखिए, इस बार जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कई ऐसे माइग्रेंट लेबरर हैं जो हमने ये उसमें देखा कि ट्रॉली बैग खींच खींच के ले जा रहे हैं, बच्चों को गोद में उठाए हुए हैं, और कहीं कोई ट्रक मिल रहा है तो बाहर के सामान जा रहा है, इंसान लादे हुए हैं, ये है। और सब लोग, और ज्यादातर ये माइग्रेंट लेबरर जो दिल्ली में या जो महानगर जैसे मुंबई में जो काम कर रहे थे, ये ज्यादातर कहाँ के थे? बिहार और यूपी के। बिहार, यूपी और एमपी के बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर थे, जो लॉकडाउन के दौरान जिसके पास करने को कुछ रहा नहीं, खाने को कुछ रहा नहीं, तो ये अपने गांव लौट रहे थे। और उसको जैसे न्यूज वालों ने हमें दिखाया कि कैसे जो है प्रेग्नेंट लेडी है, वो मतलब घंटों घंटों पैदल चल रही है, और उसके बाद सड़क में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, ये हमने देखा। लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो लोग थे, जो लोग थे इन माइग्रेंट लेबररों में बहुत बहुत कम थे। ये जो प्रवासी मजदूर जो अपने घर को लौट रहे थे, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, ये लोग लौट रहे थे, इसमें नोटिस के लोग जो थे वो बहुत कम थे, नोटिस के लोग। क्योंकि नोटिस के लोग में मतलब जैसे मैंने कहा, जो भी यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटीज में अभी भी घर को लेके एक, जिसको ये कहे, घर उनके लिए बड़ा एक सुरक्षा का घेरा है। तो घर को लेके, घर से दूर जाने को लेके आज भी लोग उस तरह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से कोई घर छोड़ के नहीं जाना है, घर ये नहीं करना, ऐसे वो बात, मैं उस चीज को मैं इसको मतलब उस तरह से मैं इसको ग्लोरीफाई कर रही हूँ, ये बात नहीं। मेरा ये कहना कि वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम की देन नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का हिस्सा रहा है। और ये हिस्सा रहा है, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हमारे लोक कथाओं के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे लोग पहले भी वर्क फ्रॉम होम किया करते थे। ये मेरी एक मंशा है, ये मेरा मकसद है। इसका अर्थ आप लोग इसको अदरवाइज लेके ये मत सोचिए कि मैं किसी को घर छोड़ के जाने के लिए, काम के लिए रोक रही हूँ, ये आप ना समझिए। इस तरह आगे और एक लोक कथा है। उस लोक कथा का शीर्षक है पाग याक्का। तो पाग याक्का लोक कथा में ये लोक कथा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें गांव है, और उस गांव के पास के जंगल में एक भालू रहता है। हमारे यहाँ भालू को सुतुन कहते हैं। भालू रहता है, और वो भालू जो है वो एकदम ऊधम मचाया हुआ है, लोगों को लगातार लोगों की हत्या कर रहे हैं वो भालू। मतलब वो भालू बड़ा ही हिंसक किस्म का, वेरी वायलेंट वन, बहुत ही हिंसक किस्म का भालू है। वो एकदम लोगों को मार काट मतलब लोगों को मार डालता है। तो इसीलिए गांव वाला बैठक करके ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग एक टीम गठित करके इस बालू को हम लोग कैप्चर करेंगे। इस बालू को हमें कैप्चर करना है। अगर इसको हमने खुला छोड़ दिया तो ये भालू आगे और विलेजर्स को और गांव के निवासियों की ये हत्या करेंगे। तो इसीलिए गांव की हत्या करेंगे। तो इसीलिए ये एक दल का गठित किया जाता है, और ये लोग जाते हैं। उस दल में एक युवक रहता है, देयर वाज अ मैन कॉल्ड
टिपी, टिपी उसका नाम होता है। तो ये जो टिपी है, इन लोग जाते हैं, इन लोग जाने के बाद इन लोग बालू को पकड़ लेते हैं, बालू को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जैसे बालू को पकड़ने के बाद बालू को मार डालते हैं, और मार डालने के बाद फिर बालू को मार डालने के बाद फिर उसके शरीर के हिस्सों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गांव में सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आज भी ये होता है कि हमारे गांव में अगर कोई शिकार, बड़ा शिकार मार के लाया है, तो उसका तो बड़ा शिकार मार के लाया है, तो उसको ये सुनिश्चित किया जाता है, ये श्योर किया जाता है कि वो गांव के हर घर में उसका जो मीट है, उसका जो मांस है, वो गांव के हर घर में पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ क्या है कि जब भालू के मीट का बंटवारा होता है, तो तिपी ये कहता है कि जो गांव का जो बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग से, यानी कि जो मुखिया है, उससे कहते हैं, विलेज चीफ से तिपी ये कहता है कि विलेज चीफ तिपी को एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है, बहुत बड़ा हिस्सा देता है, और कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया, सबसे ज्यादा तुमने मेहनत किया, और तुम ये बड़ा हिस्सा ले लो। तो तिपी कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बालू का वो ऐप चाहिए, मुझे बालू का ऐप चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी याराम कई दिनों से उसको पेट की समस्या है, वो कई दिनों से पेट की समस्या से जूझ रही है, और मैं चाहता हूं कि ये जो बालू का जो ऐप है, इसको दिया जाए, ताकि इसे खा के मेरी पत्नी भली चंगी हो जाए। तो अब आप सोचेंगे कि ये बालू का ऐप क्या है? ऐप मतलब, ऐप तो मैं निशी भाषा में बता रही हूँ, अगर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन खोजे तो क्या होगा? भालू का वाइल्ड डक उसको कहते हैं। वो एक थैली नुमा होता है, और बहुत ही कड़वा होता है, बहुत कड़वा, करेले से भी ज्यादा कड़वा होता है। उसको हम निशी भाषा में ऐप कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं पित्त की थैली। हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली, और इंग्लिश में उसको कहेंगे बाइल डक्ट। तो वो जो बाइल डक्ट है, तो वो बहुत महंगा होता है। आज भी निशी समाज में किसी को भी अगर किसी भी तरह का कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइन कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ उसकी बीमारी हो, तो उसको खाया जाता है। तो यहाँ इस लोक कथा में उसका एक वर्णन है। ये लोक कथा तो मैंने तो इस लोक कथा को रचा नहीं, लेकिन लोक कथा जिसने भी रचा उसमें कहता है टिपी, बाघ यका नाम लोक कथा है, उस लोक कथा में टिपी ये कहता है, टिपी कहता है कि विलेज चीफ से मुझे वो पित्त की थैली दे दीजिए, मुझे वो बालू का जो ऐप है वो दीजिए, उसे खिलाकर मैं अपनी पत्नी का, जो मेरी पत्नी का जो पेट की जो समस्या है, उससे मैं उसको छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। इसी तरह इस लोक कथा में अब आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे, पोथो सब्जी है, पोथो सब्जी ये भी बहुत ज्यादा कीटा होता है, ये अगर खाएंगे तो जो भी जिसको रक्तचाप की शिकायत है, यानी कि ब्लड प्रेशर का जिसको शिकायत है, जिसको हाई बीपी है, ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है। और आगे इसी लोक कथा में एक और क्या है, जंगली सब्जी का एक वाइल्ड हर्ब का जिक्र है, और वो वाइल्ड हर्ब उसको कहते हैं रार, रार। और जिसको लो ब्लड प्रेशर है, वो अगर इसको खाएंगे तो उसके लिए ये बिल्कुल ही संजीवनी बूटी का काम करता है। तो इस तरह से हमारी लोक कथाओं में ऐसे हर्ब्स का जिक्र है, ऐसे क्या, ऐसे वाइल्ड वाइल्ड एनिमल के ऐसे बॉडी पार्ट्स का हमें उल्लेख मिलता है, उन सब का जिक्र मिलता है, जिसका जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है, जिसके ट्रीटमेंट से, अब देखिए जैसे उस समय तो प्राचीन समय में कहाँ आधुनिक चिकित्सा का बोलबाला था, बिल्कुल नहीं था। तो जिसको पेट की समस्या होती थी, वो किस तरह से पित्त की तेली, जो बालू की पित्त की तेली है, वो खाते थे। और जिसको ज्यादा रक्तचाप, रक्तचाप तो उस तरह से होता नहीं था, लेकिन रक्तचाप की अगर मान लीजिए किसी को शिकायत है, तो उसने पोतो सब्जी खा लिया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे बहुत सारे लोक कथाएं हैं। हालांकि समय खत्म हो रहा है, और भी बहुत सारी लोक कथा है। एक लोक कथा और भी है, ये जो जो टेटू आर्ट के बारे में हमें बताते हैं कि पता नहीं लोक कथा है, अमीन ये दो बनी, उस लोक कथा में कैसे टेटू आर्ट हमने कैसे सीखा। आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो टेटुइंग जो करते हैं, वो बिल्कुल दैट इज कि इसको सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल वेस्टर्न आर्ट है, बल्कि टेटू वेस्टर्न आर्ट नहीं, ये एक फोक आर्ट है। तो इस फोक आर्ट की उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसको लेके भी बहुत एक इंटरेस्टिंग, एक पता नहीं एक फोकटेल है हालांकि, लेकिन समय खत्म हुआ जा रहा है, अभी केवल 3 मिनट है, और मैं 3 मिनट में चाहूंगी कि
बाकी आप में से किसी का अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न में आमंत्रित करने के लिए मैं ये 3 मिनट का समय मैं छोड़ रही हूँ। और भी बहुत सारी कृषि कला पर मैंने इस तरह से कम बहुत सारे कम से कम मैं 10-15 लोकगीत और उसके बाद लोक कथाएँ मैंने चुन के रखा हुआ था। लेकिन समय की कमी के कारण शायद मैं पूरा उस पे बोलूँगी तो एट लीस्ट मुझे और एक एक और घंटा का मुझे समय की ज़रूरत होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा आप सबसे मेरा प्रश्न या जो भी क्वेरीज़ आपके मन में है वो सारा आमंत्रित है। तो मैं मेरा जो टॉक है वो यहीं मैं समाप्त कर रही हूँ। आप सब बहुत ध्यान से आप सबने सुना होगा। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ और इसी उम्मीद के साथ आप सबको पायालिंचो यानी कि थैंक यू। नमस्ते। Thank you so much, ma'am. Now, I would like to request the participants, if you have any queries, you can ask directly to ma'am, and also you can put your questions in the chat box also as well. Okay. Thank you, everyone. Kuntal Ghosh has written, ma'am, it's a good session. All of them has very good session for us. Nurul Islam has written. Thank you. If you have any query or question to ma'am, then you can ask ma'am directly. Okay, everyone is asking for attendance link. Yes, we'll give you the attendance link after the session. Yes, Govinda Bhattacharya. Okay, then if you don't have any question, then we can wind up this session. Thank you so much, ma'am, Dr. Zamuna Bini. We have really enjoyed your lecture. We came to know about the Nisi community. Definitely, we would look forward to listen. We will look forward for your lecture again. Thank you so much, ma'am. Thank you. आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much and best wishes to all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So, attendance link is given already. There is one announcement. Actually, after today, there is a long vacation here in Assam for Bihu festival, and we will resume again on 21st of April. And yes, one more thing. By tonight, we will share all the guidelines and PPT format for research proposal submission, and participants will have to submit the proposal or whatever will be given accordingly. The time and date, everything we will let you know by tonight. So please follow the WhatsApp group. Thank you. And
I would like to repeat it again. We will resume again on 21st of April because we are having Bihu vacation here. Okay, thank you then. Thank you everyone.